Good morning students, we are once again back in a lecture video. I am Hendra Kumar, faculty of Model Literacy School for Accounts and English PGT. Children, we will be continuing with the same chapter in this lecture video, and the name of the chapter is Financial Statement with Adjustments. I told you that in this class I will be explaining you about manager commission. Okay. So sometimes in addition to the regular salary, manager is entitled to a commission on net profit. This is done to induce and motivate him to take more interest in business. Since the commission is always calculated at the end of accounting period, it is treated as an outstanding expense and the following adjusting entry is passed for it. Commission to outstanding commission. Excuse me. Now what will be the treatment of it? On the one hand, it will be recorded on the debit side of P&L account, because it is a business expense, and on the other hand shown on the liability side as an outstanding expense. Now there are two types of commission. The commission may be based on profit before charging. Pay attention on the word before. And on profit after charging. अब इनका कैलकुलेट करने का तरीका दोनों का अलग अलग है, ठीक है. Suppose the profit is earned by the firm before allowing manager commission is 22,000 and manager is entitled to a commission of 10% on net profit before charging his commission. The commission will be calculated as follows. Excuse me. Manager's commission 22,000 into 10 upon 100, क्योंकि before charging है तो इसमें 10 upon 100 ही आएगा, तो 2200. अब मान लीजिए on profit after charging commission, such commission. Suppose the profit earned by the firm before allowing manager commission is 22,000 and the manager is entitled to a commission of 10%. और net profit after charging word अगर लिखा है तो आप जितना परसेंटेज है ऊपर 100 में ऐड कर देंगे. 22,000 into 10 upon 110. अगर यहाँ 5 होता तो 105 हो जाता, 25 होता तो 125 हो जाता, 15 होता तो 115 हो जाता. Clear? In other words, it means that out of every rupees 110 of profit, the commission will be rupees 10. Okay, now question will be same. Straight away I think we should start with the question. You can just before the question you can just go through the illustration 15 of it. Items will be given to you. There are certain adjustments, and along with it in the last it is given provide manager commission 10% of profit on after charging such commission. So what you will be doing first, you will be preparing and you will be posting all the adjustment entries. Okay, opening stock बनाएंगे, इतना जो बॉक्स बनता है इसको क्लोजिंग स्टॉक सेल्स रिटर्न होगा नहीं, इसमें हमने ये निकाला, इसको यहाँ कॉपी किया, ये सब किया. अब जो हमारा यहाँ प्रॉफिट जिसको हम नेट प्रॉफिट लिखते थे, अब हम इसको लिखेंगे प्रॉफिट लिखेंगे 32,200. इसको हम फिर से यहाँ ब्रॉट डाउन करेंगे, फिर आखिरी वाली में मैनेजर को कमीशन देंगे, ठीक है. 32,200 इंटू 10 अपॉन 110 तो ये आ जाएगा, तो नेट प्रॉफिट हमारा ये होगा. और ये वाली जो अमाउंट है ये वाला, दिस विल बी रिटन आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन ओवर हियर, यहाँ पे लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन. बस इसमें यही करना है. तो क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ योर बुक. 16 कर लेते हैं, 15 तो देख लिए. दिस द क्वेश्चन गिवन. कैपिटल, ड्राइंग्स, जनरल एक्सपेंसेस, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, पावर, टैक्स, इंश्योरेंस, ये सारे आइटम्स गिवन है. एडजस्टमेंट इज ऑल्सो गिवन. ओवर हियर दे आर सेइंग प्रोवाइड मैनेजर कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग लिखा, बिफोर चार्जिंग नहीं, आफ्टर चार्जिंग. इट्स वेरी इजी. ओपनिंग लिखा हमने, परचेज लिखा, कोई परचेज रिटर्न नहीं है. सेल्स लिखा, सेल्स रिटर्न भी नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक लिखा, एक क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ लिखा बैलेंस शीट में, ठीक है. ये हमारी बैलेंस शीट 23,500. साथ साथ बनाएंगे इसको. पहला एडजस्टमेंट क्या है? 1/5 ऑफ द जनरल एक्सपेंसेस एंड टैक्स एंड इंश्योरेंस टू बी चार्ज टू फैक्ट्री. तो जनरल एक्सपेंसेस कहाँ का आइटम है? जनरल एक्सपेंसेस आइटम है P&L का. हमने इसका निकाला, 1/5 निकाल दिया, यहाँ लिख दिया हमने. और ये 500 रुपये जो है हमने ट्रेडिंग P&L में डाल दिया. सेम हमने टैक्सेस और इंश्योरेंस के साथ किया. 1315 था, लेकिन इसमें प्रीपेड पहले माइनस कर दिया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में जो 6th एडजस्टमेंट है वो प्रीपेड इंश्योरेंस है. तो पहले वी विल बी डिडक्टिंग प्रीपेड इंश्योरेंस,
After that we will giving 1/5 to factory that is 253 हमने यहाँ लिख दिया, बाकी हमारा ये बैलेंस आ गया। ना उन्होंने बोला राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स यानी डेटर्स हैं, फर्दर बैड डेट्स 160 है, बैलेंस आया, उस पर 5% प्रोविजन लगाना है, 5% provision we are charging 306, the balance is written over here. Again this will be posted over here, you can see bad debts 550, 160 further bad debts, न्यू प्रोविजन ऐड कर दिया, माइनस कर दिया ओल्ड प्रोविजन, 116 बचा यहाँ पे हमारा, ठीक है। आफ्टर दैट डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%, स्कूटर बाय 240 रुपीज़, मशीनरी का 10% निकाला 934 आया, बैलेंस यहाँ लिखा, स्कूटर का 240 माइनस किया, बैलेंस यहाँ लिखा। दोनों डेप्रिशिएशन को हमने P&L में लिख दिया, दोनों को यहाँ पे 240 एंड डेप्रिशिएशन और मशीनरी। आफ्टर दैट प्रीपेड इंश्योरेंस इज ऑलरेडी डन, 700 इज आउटस्टैंडिंग फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा लायबिलिटी है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 700, दिस विल बी एडेड इन बैंक ओवरड्राफ्ट, this will be written over here, and this is an expense to the firm, तो interest on OD 700। अब इन्होंने बोला प्रोवाइड मैनियर कमीशन, तो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी पासिंग द रेस्ट ऑफ द एंट्री, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ट्रेड ग्रॉस प्रॉफिट निकाला हमने, ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पोस्ट किया, बाकी सारी एंट्रीज पोस्ट कर दी। अब हुआ क्या कि जो हमने जो प्रॉफिट निकाला है ये सब पोस्ट करने का, डिडक्ट करने के बाद वो है 9900, एंड नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट मैनेजर कमीशन। तो इस 9900 को हमने यहाँ कॉपी किया, इसको देखो मैंने नेट प्रॉफिट नहीं लिखा, इसको मैंने सिर्फ प्रॉफिट लिखा, इसको यहाँ लिखा 9900 9900 इंटू 10/100 110, 900 आया, 9000 हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। दिस विल बी एडेड ओवर हियर इन कैपिटल एंड ड्राइंग्स विल बी डिडक्टेड, और हमारा बैलेंस यहाँ पे 5630 यहाँ पे आ जाएगा। आई थिंक चिल्ड्रन यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। Start doing the questions and take care of yourselves. Thank you, children.